अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अब हम ब्लैक मैजिक की दूसरी एपिसोड आप लोगों को बता रहे हैं। ज़माने कदीम से, एंशंट टाइम से मुख्तलिफ़ अक़वाम में जादू चल रहा है और उनमें उनके मुख्तलिफ़ किस्म की क्वालिटीज़ थी। मिसाल के तौर पे इजिप्टन कल्चर जो था उनमें शयातीन जो थे जिन्नात उसको इस्तेमाल करते थे और बाइबलियन में भी शयातीन को इस्तेमाल करते थे। इसी तरह बरे सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में जो है ज़्यादातर हमज़ाद शयातीन जो होते हैं उनके जो है उनका जादू इस्तेमाल करते हैं। जो जादूगर मर जाते हैं या ख़ुद जादू करते हैं वो सब शयातीनी हमज़ाद जो इंसानों के हमज़ाद होते हैं उनको मुसल्लत करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इन हिंदुज़म बरे सगीर में जो जादू इस्तेमाल होता है हमज़ाद शयातीन इस्तेमाल करते हैं। हमज़ाद शयातीन क्या होते हैं? हमज़ाद शयातीन में इनमें इनके इक़साम जो हैं उसमें काली माता, मसानी, ये मशहूर हैं। माता मदानन, इसी तरह कमाल पंडित, शम्स खबीस, इसके अलावा शेख सद्दू, ये जो हैं ये इक़साम है हमज़ाद की। बड़े इधर देखो। सामरी जादूगर,
یہ سارے جادو جو ہے، یہ سارے جو میں نے نام لکھے ہیں یہ از قسم ہمزاد ہیں. دیز ٹائپس آف میجک از فرام ہمزاد یا بلیک میجک اور بلیک میجک of twin angels. It is used usually in subcontinent. Mostly dangerous than others. یہ زیادہ نقصان دہ ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جن لوگوں نے ظلم پہ زندگی گزاری، غلط کام کیے، سحر و جادو کیا، وہ جب مر جاتے ہیں تو ان کا جو مسان ہوتا ہے، مسان راکھ کو کہا جاتا ہے، جہاں پہ وہ اپنے مرے ہوئے لوگوں کو جلاتے ہیں، وہاں پہ ان کے لوگ جاتے ہیں اور کچھ سامان لے کے جاتے ہیں، اور ان میں خاص طور پہ جو چیز بلی دیتے ہیں ان میں بکرا ہو گیا، مرغی ہو گئی یا کوئی اور چیز ہو گئی جو کہ تعلق رکھتی ہو گوشت سے، ماش مچھلی سے، وہ لے کے جاتے ہیں، اور ساتھ میں شراب کی بوتل، تمباکو جیسی چیزیں، نشے دار چیزیں وہ وہاں پہ لے جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ان کے جو منتر ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان کو بلاتے ہیں، ان کے جو اسپیلس ہوتے ہیں اس کے ذریعے ان کو بلاتے ہیں، اور وہ ان کو بھیٹ دیتے ہیں، یعنی ان کو خوراک دیتے ہیں، یعنی وہ شیاطین کو کھانا کھلاتے ہیں. جب شیاطین کو وہ کھانا کھلاتے ہیں تو وہ ان کا پھر کام کرتے ہیں، پھر وہ ان لوگوں کو حکم کرتے ہیں کہ فلاں بندے کے اوپر چلے جاؤ، اس کو یہ تکالیف دو، تو پھر وہ ان کی طرف جاتا ہے. تو اسپیشلی جو لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں، یہ کالی ماتا جو ہے اس کے لیے ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے منہ سے رال بہے گی، اور اس کی دوسری سمبل یہ ہے کہ زبان نکالے گا، بار بار بات کرتے ہوئے ان کے منہ سے زبان نکلے گی، اور اس کی تیسری نشانی یہ ہوگی کہ اس کی رنگت سیاہی مائل ہوتی جائے گی. تو اس طرح سے ان کی علامات ہیں کالی ماتا کی. جب اس پہ یہ جادو کیا جاتا ہے، اور اگر مسانی کا جادو کیا جاتا ہے تو اس بندے کے کپڑوں پہ راکھ ملے گی اور جلنے کی بو آئے گی، اپنے آپ میں سے بھی اس کو جلن ہوگی، گرمی پیدا ہوگی، حرارت پیدا ہوگی. اس کے علاوہ گھر میں جھگڑے فسادات علیحدہ سے رہیں گے. تو یہ چیزیں سب اس میں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ لوگ جو ہیں لوگوں کو جو ہے بیماری تکلیفات زیادہ رہتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ ان حالات میں مر جاتے ہیں. پھر یہ جو مدانن ہے یہ بھی اسی طرح کا ہی جادو کرتی تھی، اور اس سے حضرت بابا فرید مشہور شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ ہوا تھا. کمال پنڈت اور شمس خبیث ان کے بھی یہی کام ہے، اور شیخ سدو یہ بھی یہی ہے، لڑانے جھگڑنے کے لیے، لڑکیوں کو بہکانے کے لیے، یہ سارے سب ان خبیثوں کے کام ہیں. اور سامری اس کا کام بھی لوگوں کو نقصان دینا ہی ہے،
शिरक की तरफ माइल करेगा और पागलपन, ये सब चीज़ें इनमें आती हैं। यानी जितनी भी ज़हनी इमराज़ें, जिस्मानी इमराज़ें अगर जादू के ज़रिए हैं तो वो इन चीज़ों के ज़रिए मुसल्लत की जाती हैं। अब इसका दूसरा तरीका वो है जूडिज़म का तरीका, जूडिज़म मैजिक, यहूदियों का तरीका जो है। वो शयातीन जिन्नात से काम लेते हैं। ये शयातीन जिन्नात से काम लेते हैं। जिस तरह से दुआए बरहती एक नूरानी हथियार है जो कि हज़रत पैगंबर सैयदना हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को अता हुआ था, इसी तरह उन लोगों के पास एक उनकी उलट जो है एक दुआ है जिनमें वो शयातीन को, इबलीस को या उनके जो बड़े नाम हैं उनकी कसम देते हैं। तो जो शयातीन सरकश होते हैं वो उनके पास आते हैं और उनका हुक्म मानते हैं। जिस तरह दुआए बरहतिया मुसलमान जिन्नात जितने भी हैं सब उसके ताबे होते हैं, इसी तरह उनके उलट एक और उनकी अज़ीमत होती है जिसमें शयातीन जिन्नात के नाम होते हैं। जिस तरह हम अल्लाह ताला के नाम लेते हैं दुआए बरहतिया में और अल्लाह ताला उसके सदक़े से हमें मदद करता है उसके ज़रिए से, इसी तरह शयातीन के पास जो जादूगर लोग होते हैं वो शयातीन के नामों को पुकारते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगा लें। मिसाल के तौर पे इबलीस का नाम पहले अज़ाज़ील था, कहीं पे उसका नाम जो है इबलीस है, कहीं उसका नाम मार है, कहीं उसका नाम शैतान है, कहीं उसका नाम खबीस है। तो कहीं उसका नाम कोई और है। तो जो मुख्तलिफ मज़ाहिब वाले उन शयातीन का नाम लेते हैं तो उसको इसके ज़रिए जादू करते हैं। ये जादू भी अपनी जगह पे बहुत बड़ा ख़तरनाक जादू होता है। इसी तरह तीसरा जादू जो मशहूर है जिसका मुकाबला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ था। अब जो तीसरा तरीका है नज़र बांधना, ये इसका सामना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िरौन की दरबार में गए तो उसे जादूगरों के साथ मुकाबला करना था।
जादूगरों ने रस्सियाँ फेंकी, वो रस्सियाँ सांप बन गईं। तो जो जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता और वो जैसे कहते हैं उसको नज़र आता है, तो वो जादू होता है नज़रबंदी का। और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ललकारा गया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जो था वो ज़मीन पे रखा और ज़मीन पे फेंका, तो वो सांप बन गया और उसने इस जादू को ख़त्म किया। तरतीबार इन सारे जादुओं की इकसाम जो हैं उनका मैं इलाज बताऊंगा। ये जो मैं आप लोगों को वीडियोस बना के बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ। इसका मतलब है आप खुद एबल हो जाएं, आप में खुद एबिलिटी आ जाए कि आप किसी का या अपना खुद इलाज कर सकें और आप उनकी हकीकत को समझ सकें। सिर्फ बातें नहीं बल्कि हक़ाइक़ की तरफ आप समझ सकें। अब ये तीसरा किस्म जादू का नज़रबंदी का है। और अक्सर जो खेल तमाशे दिखाते हैं, जो बच्चों को हाथ सफाई दिखाते हैं, उसमें भी नज़रबंदी का ही कमाल है। और इसके अलावा मैजिक शोज़ होते हैं, या वो लोग जो लोगों को लूटते हैं तो ऐसा उनके ऊपर जादू करते हैं कि वो खुद ब खुद उनको पैसे दे देते हैं। तो ये घरों में या रास्तों में कभी कभी ठग लोग इस तरह के मिल जाते हैं और उनके पास इस जादू का इल्म होता है। अब जो चौथा इल्म है वो है गांठ लगाने का, गांठ का जादू, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उन्होंने किया, यहूदियों ने, और उन्होंने गांठें लगाई थी। तो ये सहरुल अक़दत और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये जादू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किया गया। इनमें कुछ इस तरह से जैसे हम मुद्रा पढ़ते हैं, इसी तरह से उनके मुद्रा जात कस्में होती हैं, वो उसको पढ़ के गांठ लगाते हैं ताकि उसकी बंदिश हो जाए। तो उसके जिस्म पे तकालीफ़ के आसार होते हैं, बीमारियां भी लग जाती हैं लोगों को। तो ये वो इल्म है। और इसी के नतीजे में जो है मऊज़तीन और कुल शरीफ जो हैं, मऊज़तीन और कुल शरीफ जो थे, ये इनके इलाज के लिए ये उतरे थे, नाजिल हुए थे। तो ये भी एक सर जादू की एक किस्म है। और इसका इलाज किस तरह से किया जाएगा तो आगे चल के हम करेंगे। ये रोज़गार की बंदिश हो, सेहत की बंदिश हो, शादी की बंदिश हो, या कोई और बंदिश हो, औलाद की बंदिश हो, ये मामलात जो होते हैं इसके ज़रिए करते हैं। और दिमाग की बंदिश, नींद की बंदिश, ये सब जो हैं उनके अपने जो एक तरीक़ेकार जादूगरों का होता है, वो इस इल्म के ज़रिए यानी सहरुल अक़दत के ज़रिए इसको बंदिश लगाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़
بہت جلد میں تیسری ایپیسوڈ اس کی بناؤں گا، جس میں علیحدہ علیحدہ سے آپ لوگوں کو ایک علاج قرآن مجید فرقان حمید سے، اسماء الہی سے آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا، تاکہ آپ لوگ جو مرض ہو، جو بیماری ہو، جو تکلیف ہو، اس کے مطابق اس کا حل کریں، نہ کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ بھی پڑھنا ہے، وہ بھی پڑھنا ہے، وہ بھی، ایسی نہیں، جو تکلیف ہو اس کے مطابق اس کو پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔